Today we are going to discuss adiabatic process. We are already familiar with this term and we have calculated the work done for an adiabatic process. Today we are going to analyze what is actually happening inside the adiabatic process, how work is done on the system during the adiabatic process and work is done by the system during the adiabatic process. We are familiar with the word adiabatic process basically is a process in which we take a system, and that system is isolated from the surroundings, and the system is insulated system. No heat can enter or no heat can leave the system. The process in which there is some work done on the system but no heat is entering the system or no heat is leaving the system is known as adiabatic process. We got two modes of operation for the adiabatic process. First one is that in which the adiabatic expansion occurs, and the second one is that in which adiabatic compression occurs. Now, what is adiabatic expansion process? Let's discuss it. For that, let's consider a cylinder with a movable piston, and we can place weights over that piston. Now, initially we got the gas inside the cylinder, and the gas is an ideal gas. Now, let's say that ideal gas is in initial equilibrium state and the values of pressure, volume and temperature are Pi, Vi and Ti of the for that ideal gas. Let's say we have insulated the system from the surroundings and no heat changes are occurring inside the system. Now, as we know that the gas molecules are free to move and the gas expands freely, we know the molecules are exerting forces on the walls of the container and as well as the piston. So these molecules, whenever these molecules are set free to move, they will try to expand. And in this special case we are going to allow the gas to expand, and for that we are going to remove the weights over the piston. As we can see in the diagram that for the first cylinder we have placed some weight over the piston and afterwards we have removed the weights, और जैसे ही हमने वेट को रिमूव किया है तो हमारे पास जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई. बेसिकली हमारी जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही है, और आफ्टर एक्सपेंशन हमारी जो गैस है वी आर ऑब्जर्विंग कि हमारे पिस्टन ने एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट की है, और जब इसने डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन की है तो हमारे पास जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है. इनिशियली लेट्स से हमारे पास जो वॉल्यूम था वो Vi था और फाइनल वॉल्यूम जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ Vf. सिमिलरली जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर था, अच्छा अब प्रेशर की वैल्यू, जो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हुई है एंड एज वी हैव रिमूव्ड द वेट ओवर द पिस्टन तो हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. इनिशियली हमारे पास प्रेशर की वैल्यू Pi थी एंड आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और वो डिक्रीज़ हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज़ टू Pf. और हमारे पास टेम्परेचर जो है ऑफ द सिस्टम दैट इज़ ऑल्सो चेंज फ्रॉम Ti टू Tf. हमारे पास टेम्परेचर जो है दैट इज़ डिक्रीजिंग एज द गैस इज़ एक्सपेंडिंग. तो हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो डिक्रीज़ करेगा अनटिल अनलेस हम अपने सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बाहर से नहीं बढ़ाते हैं. नाउ हम लोग क्या डिस्कस, बेसिकली हम एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सारी डिटेल्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं. व्हाट आर द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हेन द गैस इज़ एक्सपेंडिंग. तो उसके लिए लेट्स से कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करेंगे. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही थी कि हमारे पास टोटल चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन वर्क डन और चेंज इन द हीट के.
एज वी आर सेइंग कि हमारे पास जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस से मुराद क्या थी हमारे पास कि नो हीट कैन एंटर और नो हीट कैन लीव द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास डी क्यू जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, क्योंकि कोई चेंज इन हीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, और वर्क डन, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वर्क डन एज आर पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और हमारे पास बेसिकली जो फोर्स, हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे क्या हमारे पास रिज़ल्ट आया कि हमारे पास जितनी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कन्वेंशनली हम लोग इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे एज वर्क डन इज़ नेगेटिव, और हमारे पास जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर रहा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ रिड्यूसिंग तो हमारे पास क्या हो रहा है, और दूसरी बात हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है। व्हेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम वर्क डन इज़ नेगेटिव, और जब भी हमारे पास वॉल्यूम का डिक्रीज़ होता है तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है। लेकिन फॉर दिस केस, फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होगा। और जब वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन के लिए हमने यहाँ से ये ऊपर वाली इक्वेशन से, ये जो हमारे पास हाईलाइटेड इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे पास जब भी वर्क डन होगा तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, ये हमारे पास वर्क डन के बराबर होगी। और वर्क डन की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है फॉर आवर प्रीवियस कैलकुलेशंस। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी हुई है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर gamma is the constant, is a ratio of molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume for the case of real gases. Now moving on towards the second mode of operation for an adiabatic process, and that mode of operation, सॉरी, पहले हम लोगों ने इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास गैस जो है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है तो क्या बिहेवियर शो करेगी, और अगर वो एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस करती है तो वो क्या बिहेवियर शो करेगी। तो हमारे पास बेसिकली एक पीवी डायग्राम बनाई गई है यहाँ पर इस बिहेवियर को शो करने के लिए। और ये पीवी डायग्राम को बेसिकली, चूँकि हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बना रहे हैं, तो जो शेप ऑफ द पीवी डायग्राम है इसको हम एडियाबैट कहेंगे। और एडियाबैट जो है वो आपके पास इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि कर्व जो है हमारे पास एडियाबैट रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ प्रेशर एंड चेंज ऑफ प्रेशर एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम, एंड व्हाट विल बी द वर्क डन। वर्क डन हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर दिस एडियाबैट तो दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द second mode of operation for the adiabatic process, and that is adiabatic compression. Now for this process we are going to consider the similar system which consists of a movable piston, a cylinder, and the movable piston is also, we can place gas inside the cylinder, an ideal gas inside the cylinder having initial equilibrium states of pressure of Pi, volume of Vi, and temperature of Ti. And similarly we can increase the pressure by increasing the weight over the piston, and if we want to increase the weight on the piston, basically we want to increase the pressure of the system, we are going to increase the weight on the piston, and resultingly the piston is moving downward, as it is clear in the diagram. When we put some weight on the piston moved downward, and it
it has done some displacement, that is dx, in the downward direction, and the pressure of the system is increased. Resultingly, the value of pf is larger or greater as compared to pi. Similarly, the volume of the system is decreased. Volume, initial volume was vi and the final volume is vf. As this is an adiabatic process, so there will be no heat entering or leaving the system, so the value of dq will be 0. But as the final volume is lesser as compared to the initial volume, so the work done over here will be taken as negative. And if the work done is taken as negative, सो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट थी वो क्या थी? वो यही थी कि हमारे पास टोटल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू टोटल हीट प्लस द वर्क डन। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हीट चेंज की वैल्यू जो है डी क्यू की वैल्यू वो ज़ीरो हो जाएगी, और वर्क डन फॉर दिस सिस्टम इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो हमारे पास टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगी वर्क डन के जितना भी। अच्छा, यहाँ से इस इक्वेशन से हम ये एज्यूम करेंगे कि जितना भी हमारे पास सिस्टम के अंदर वर्क डन हुआ है वो सारा का सारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारे पास सारा का सारा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और यहाँ पर वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होगी फॉर दिस केस, जब हमारे पास वर्क डन सिस्टम के अंदर पॉजिटिव है। और वर्क डन के लिए कैलकुलेशन की हुई है हमने ऑलरेडी अपनी, और वर्क डन की कैलकुलेशन हमारे पास क्या बता रही है कि वर्क डन जो है वो हमारे पास बराबर है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस 1/gamma minus 1 is equal to pf vf is minus pi vi. Now moving on towards the second process, और second process क्या है जी? हमारे पास isothermal process. We have already studied what is isothermal process. Iso का मतलब होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, same, and thermal means temperature. So a process in which the system's temperature remains constant is known as isothermal process. And isothermal process holds Boyle's law. अब बॉयल्स लॉ क्या था हमारे पास? हमने कैलकुलेट किया था व्हेन कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम। हमने ये कहा था कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ आल्सो कांस्टेंट। अच्छा, तो हमारे पास देर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर दैट आइसोथर्मल प्रोसेस. फर्स्ट वन इज़ द एक्सपेंशन वन एंड सेकेंड वन इज़ द कंप्रेशन वन. कि हमारे पास सिस्टम में अगर गैस जो है लाइक वी आर कंसिडरिंग द आइडियल गैस, एंड आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने ये बात की हुई है कि हम लोगों ने अपना सिस्टम जो है वो फिक्स रखा हुआ है कि हमारे पास एक अदद मूवेबल पिस्टन है, एक सिलेंडर है, और मूवेबल पिस्टन और सिलेंडर के साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास उसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है और आइडियल गैस फिल की हुई है. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि हमारे पास ड्यूरिंग एक्सपेंशन कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं ऑन द इंटरनल एनर्जी, एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट हमारे पास क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं ऑन द इंटरनल एनर्जी. Now first consider isothermal expansion process. Isothermal expansion process. अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमने क्या किया, अपनी एक अदद मूवेबल पिस्टन लिया, और इस मूवेबल पिस्टन के साथ ही साथ हमने मूवेबल पिस्टन जो है वो हमारे पास इंसुलेटिंग होगा. क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर से टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो. और हमारा ये जो सिलेंडर है इसकी हमने वॉल्स को भी इंसुलेटिंग रखा हुआ है. लेकिन
हमारे पास जो सिलेंडर है इसकी बेस को हमने कंडक्टिंग रखना है। अब इसकी बेस को हमने कंडक्टिंग क्यों रखना है वो हम जाकर थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो बेस है दैट इज़ कंडक्टिंग एंड द वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग एंड द पिस्टन इज़ ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग. So initially we have placed some weight over the piston, और इनिशियली जो हमारे पास गैस है उसका इनिशियल प्रेशर पी आई है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी आई है. नाउ एज वी वांट टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम लोगों के पास जो टी आई की वैल्यू है वही हमारे पास टी एफ की वैल्यू होनी चाहिए. सो अब हम क्या करते हैं, हम अपना जो सिस्टम है इसके ऊपर से सिस्टम के ऊपर, अच्छा इस सिस्टम को हमने क्या किया हुआ है, एक अदद हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर रखा हुआ है. अब ये हीट रेजरवायर या थर्मल टेम्परेचर रेजरवायर का मतलब मकसद क्या था, हमारे पास ये टेम्परेचर रेजरवायर अगर सिंपल टेम्परेचर रेजरवायर होता या थर्मल रेजरवायर होता तो उसका मकसद क्या था, दैट शुड प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम और दैट कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम. नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसा रेजरवायर जो कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर सकता है. यह इसकी टेम्परेचर की वैल्यू जो हमारा सिस्टम है उसके टेम्परेचर की वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये सिस्टम के अंदर से हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ एट हायर लेवल. ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकता है, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर सकता है. तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट. और एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले तो हमने अपने जो पिस्टन के ऊपर वेट्स रखे हुए थे उस वेट को रिमूव करेंगे. रिजल्टिंगली वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन, और अगर हमारे पास प्रेशर जो है ऑन द सिस्टम रिड्यूस होगा तो रिजल्टिंगली क्या होगा, हमारा पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, और अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम है ऑफ द सिस्टम दैट विल इंक्रीज. और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, व्हेन एवर द गैस एक्सपेंड्स, it is a known fact that our temperature of the gas is reduced. Now हमारे पास यहाँ पर हमारा इस प्रोसेस का मोटिव क्या था कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है. टेम्परेचर की वैल्यू को हमने रिड्यूस नहीं होने देना, चेंज नहीं होने देना. फॉर दैट हम ये जो हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है अब यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा और कंडक्टिंग बेस हमारे पास इस्तेमाल होगी. अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर रेजरवायर हमारे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चूँकि अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो हमारा ये जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर है ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम के अंदर हीट को एंटर करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टू अ कांस्टेंट. और यह मेरी जो कंडक्टिंग बेस है ये क्या करेगी, ये अलाउ करेगी हीट को सिस्टम के अंदर एंटर करना. तो अब क्या हुआ, हमारे पास सिस्टम के अंदर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ हमने क्या कहा, हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ हुआ. और व्हेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम, तो हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू यहाँ पर फॉर एक्सपेंशन हमने कहा था कि हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी. और अगर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होगी और दूसरी चीज़ हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है. एंड द थर्ड थिंग, जब भी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इट इज़ नोन कि हमारे पास देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एज वी आर डीलिंग विद द आइडियल गैस. और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आइडियल गैस के अंदर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी. और ये भी बात हमने कही थी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू के ई, बराबर है हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी के EINT के. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी इंटरनल एनर्जी के अंदर
चेंज नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़ीरो हो गई। लेकिन हमारे पास बाकी सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या कहती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द वर्क डन प्लस चेंज इन द हीट। तो चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास, और वर्क डन हमने अभी बात की, व्हेन एवर द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीजिंग द वर्क डन इज़ नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम के अंदर डब्ल्यू डी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। और यहाँ से हम लोग ये अपनी इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा कि जितना भी वर्क डन है वो हमारे पास हीट जो सिस्टम में एंटर हो रही है उसकी फॉर्म में हमें नज़र आएगा। और एज़ वर्क डन इज़ पॉजिटिव तो हमारे पास हीट जो है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। और जब भी हमारे पास हीट पॉजिटिव होगी किसी सिस्टम के अंदर, दैट मीन्स कि हीट इज़ एंटरिंग इनसाइड द सिस्टम। ये बात हम लोगों ने कन्वेंशंस फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी हैं। और आइडिया हम लोगों के पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए हमने अपनी वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, और दैट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, एंड दैट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू माइनस nRT log ऑफ VF2/VI। अब यहाँ पे माइनस n जो है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, R representing ideal gas constant, T is the temperature of the system, that was a constant, and VF is the final volume of the system, and VI is the initial volume of the system. Now moving on towards the PV diagram for isothermal process. This diagram shows with the increase in the volume, the pressure of the system is decreasing, or the converse is also possible. We can say with the increase in the, this is the result for the isothermal compression। जो भी मैंने बताया कि अगर हमारे पास प्रेशर को अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। सॉरी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। और ये जो है हमारे पास बेसिकली इस ग्राफ को, शेप ऑफ द ग्राफ को हम आइसोथर्म का नाम देंगे। आइसोथर्म एज वी आर डिस्कसिंग द process of isothermal process. Now moving on towards the second term in a second mode of operation for the isothermal process, and that is isothermal compression process. For this we have considered the system, और सिस्टम क्या है, वही सिस्टम है हमारे पास, आइडियल गैस है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, मूवेबल पिस्टन लगाई है। लेकिन ये जो मूवेबल पिस्टन है ये हमारे पास इंसुलेटिंग पिस्टन है। वॉल्स ऑफ द सिस्टम आर ऑल्सो इंसुलेटिंग बट द बेस ऑफ द सिस्टम इज़ कंडक्टिंग। और इस सिस्टम को हमने कोल्ड रेजरवायर के ऊपर, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लो टेम्परेचर रेजरवायर LTR के ऊपर रखा हुआ है। अब ये जो लो टेम्परेचर रेजरवायर या कोल्ड रेजरवायर है, इसका मकसद क्या है, इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी गैस को कॉम्प्रेस करने, आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करना चाह रहे हैं। आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करने का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू compress the gas keeping the temperature of the gas constant for that purpose। अच्छा, अब हमारे पास जब भी हम गैस को कांस्टेंट रखेंगे, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हम जब भी अपनी गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टिंगली बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द पिस्टन, and resultingly the volume is decreased from the initial state Vi to the final state Vf, and the temperature, as the molecules are coming closer to each other, the kinetic energy of the molecules is increasing, and resultingly the temperature of the system is increasing. But for this specific case we have to keep the temperature value of the temperature to a constant, to a minimal। और उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब हमारे पास हमारा ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर है, ये हमें हेल्प आउट करेगा कि हमारे पास सिस्टम के पास जितनी भी एक्स्ट्रा हीट आएगी वो सारा, सॉरी, जितना भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर आएगा वो सारा का सारा टेम्परेचर जो है हमारा ये कोल्ड रिजर्वायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है उसकी वैल्यू एक अदद कांस्टेंट रहेगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ, एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो द वैल्यू ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और अगर ये ज़ीरो होगी तो उसके बाद हमारे पास, और वर्क डन, as the final volume of the system is decreasing, so the value of the work done will be positive, और अगर work done positive होगा तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या होगा कि हमारा टोटल जो वर्क डन है, टोटल इंटरनल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई आर इक्वेशन, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज़ इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ पर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि हीट इज़ लीविंग द सिस्टम, और ये हम लोग प्रीवियस अपनी डायग्राम से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो हीट है वो सिस्टम से बाहर की तरफ फ्लो कर रही है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो तो चेंज नहीं होगा, हमारे पास वर्क डन ओवरऑल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दैट विल रिमेन सेम, एंड दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ ओवर लॉग ऑफ वी आई। एंड नाउ that is all for our isothermal process.